session, especially our RP, Mrs. Nishant, and the presider of this function, Honorable President of Malappuram Central Sahodaya, Mr. Naufal Puthanbidekal, and all my beloved teachers. Once again, I welcome you all, and I request Mr. Naufal PP, the President of Malappuram Central Sahodaya, to preside over this session. Naufal, sir. Sir, you are not audible. Your mic is not open, on, sir. Okay, I think it's audible now. Yes, sir. Okay, thank you, Mr. Anish Kumar, our dear General Secretary, Malappuram Central Sahodaya, and the resource person of the day, Ms. Nishat, and all my dear teachers, Hindi teachers. Uh, you know, Malappuram Central Sahodaya is working for the overall development of CBSE schools in Malappuram. We are having almost 72 schools, but unfortunately, the language Hindi is taught in very less schools. You know the reason. Even Miss Nishat, my Hindi department head and HM, she used to ask me why the Hindi is not opted by many. There are a few reasons, like those who are in Kerala and looking for the other, Malayalam. The number is large, and mainly the schools are opting Malayalam. But as far as Hindi is the prime language and the most important language, the national language, that is too important, and we are getting admissions for Hindi language. So the students with a greater interest are taking Hindi as a language, as a subject too. So anyway, the number is less. When we conducted the different subject trainings, we got 100 plus participants in almost all the subjects, except maths. All the subject trainings are over, except Arabic and mathematics. So in Arabic, in Hindi, we are having 11 to 15, 10 to 15 schools opting this particular language in grade 10. And very rarely the people are taking it as a additional subject. So that's a matter. So not in the number of people, but the quality of the people. That's what the most important thing. I am sure the Hindi department, CBC school, doing a great job, and I appreciate you all. Even in this pandemic scenario, you are doing your job wonderfully. And as the CBSE has changed a lot of, uh, brought a lot of exam reforms, we need to cope up with all this, and we need to train our students in a better manner. We know term one examination in class 10 is a board examination, and the CBSE is yet to finalize the date. I think the LOC work is going on by the end of this month, 30th September. The students will be registered for examinations. So in the very first week or before 15th October, we will get the actual schedule of the examinations. Still, there are some uncertainties whether it is online or offline. If it is online, more weightage will be given to term 2 examinations. Like that, there are a lot of changes in new scheme. We are already aware of that, but to discuss it in detail, we are conducting this synergy, and Ms. Nishat will take the lead the session, the interaction, and you all Hindi teachers will contribute to it, and will make and we will get synergized from this synergy. Synergy means it's an energy which is formulated when a lot of positive people are coming together. We are having the energy, that group energy is known as synergy. So welcome to synergy, and thank you all for joining this session. And I invite Ms. Nishat to take the charge of the session. Thank you all. Have a nice program. Thank you. Thank you, sir. First of all, I'm very much grateful to all the Sahodaya crews for giving me such a beautiful opportunity. I'm very much privileged to be here with you all, with all the Sahodaya crews as well as my teachers. Thank you so much. And I would like to say that this is not my first time. This is the fourth time I'm mingling here, getting together here with Sahodaya and all the teachers, Hindi teachers of Sahodaya complex, so of Malappuram Central Sahodaya. And I would like to say that every experience is an opportunity to learn and grow. And I would like to thank most our Naufal sir, my principal sir, for giving me and choosing me to serve in such a important role, such an important role here in this
as a resource person of Hindi Synergy. So I think I must start. So teachers are there. Teachers, synergy, you know, तालमेल. हम लोग सब मिल जाते हैं. I would like to start with in Hindi itself, right? हम हिंदी टीचर है तो हम हिंदी में ही बातें करेंगे. Is it okay, Naufal sir? Naufal sir? So हम सब लोग हमारी जो बातें करेंगे, I think सबको समझ आ जाएगा. हिंदी और इंग्लिश में अगर थोड़ा कुछ दिक्कत होगा, मुश्किल होगा तो हम लोग उसे आराम से बोलेंगे. तो पहले तो मैं अपना शेयर करना चाहूंगी और हम ये सिनर्जी स्टार्ट करने से पहले एक प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं. तो मेरी आपसे निवेदन है कि सभी 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं, सिर्फ 1 मिनट प्रार्थना के लिए खड़े हो जाए. सर डायरेक्ट പോയാ പോരെ, ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ പോയാ പോരെ, ഷെയർ സ്ക്രീൻ. കേൾക്കോ? ഇവിടുന്ന് 30 seconds 30 seconds അവർക്ക് വരണം. 30 seconds അവർക്ക് വരണം. ഞാൻ പ്ലേ കൊടുക്കട്ടെ? ആ കൊടുത്തോളൂ. कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. दूर अज्ञान के अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे. बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. So teachers, हम सब इस सिनर्जी में अभी ये जो 2021-22 का जो पाठ्यक्रम है और जो पद्धति आई है नई, उसमें हम सब नए हैं. तो एक दूसरे से तालमेल, सिनर्जी का मतलब ही तालमेल है. सो हम मिलकर इसे एक एक जो प्रश्न हमारे अंदर है उसे
हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपना ये स्क्रीन शेयर करती हूँ, सिनर्जी का पीपीटी शेयर करती हूँ। ओके, तो सिनर्जी, वैसे मैंने कहा आपको, आई थिंक आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। आप सब मेरी आवाज सुन सकते हो ना? यस मैम। हाँ, ओके। Just a minute. सिनर्जी जैसे हम बोले तालमेल है, तो हम सब मिलकर ये जो नई पद्धति है उसका कार्य शुरू करते हैं। सीबीएसई ने इस बार आप लोगों को पता है कि जो परीक्षा है 2 सत्रों में बांट दिए हैं, और इसके लिए ही हमें नई पाठ्य पद्धति और मूल्यांकन योजना उन्होंने हमारे सामने लेकर आई है हर विषय में। तो आज हम हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, जो हिंदी में नई पाठ्य पद्धति और मूल्यांकन योजना है 2021 और 22 के लिए है। तो पाठ्यक्रम सिलेबस में जाएंगे हम, और पहले बात तो मैं ये बता दूं आपको, यहाँ की जो स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसे कि नई पाठ्य पद्धति और मूल्यांकन योजना है, जो हमारे सीबीएसई ने ग्रेड 10वीं और 12वीं के लिए, कौन से जो 10वीं और 12वीं के लिए एक नई पाठ्य पद्धति और मूल्यांकन योजना तैयार की है। आज हम उसके बारे में बराबर, आप लोगों को सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हम उसे अच्छी तरह समझेंगे, और जिसके मन में थोड़ा जो शंका है वो भी शायद इससे कम हो जाएगा। और आप लोग ये ध्यान में रखिए कि ये जो पाठ्य पद्धति है, ये नई पाठ्य पद्धति सिर्फ 2021 और 22 के लिए ही है, इस वर्ष के लिए ही है, क्योंकि आप लोगों को पता है गए वर्ष, पिछले वर्ष जो है हमारा सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए थे, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हुई थी, उससे हमारे आंतरिक मूल्यांकन वगैरह और दूसरे थोड़ा नए एक चाल चलन लाकर हमने एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट बनाया। तो इस वजह से इस बार सीबीएसई ने, मतलब हमारे जो भी हालत सामने आए, कोरोना, सभी को पता है कोरोना से हम बहुत परेशान हो, जो भी हालात हमारे सामने हो उसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे हम अपने बच्चों को असेस करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे, इसके लिए एक पद्धति निकाली है। तो अध्यापक और अध्यापिकाओं, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस बार सीबीएसई ने 5 जुलाई 2021 के स्पेशल स्कीम में जो ये परीक्षा बोर्ड एग्जाम है 2 सत्र में कर दी है, 2 टर्म्स, 2 सत्रों में बांट दिए हैं, और हर एक सत्र में 50% पोर्शंस दिए जाएंगे, मतलब 2 सत्रों में से बांट दिया गया है, और इसका जो प्रतिशत कितना है, 2 सत्रों में भी 50% हमारा सिलेबस होगा, मतलब पोर्शंस होंगे। और पहला टर्म जो है, पहला सत्र का जो परीक्षा है वो नवंबर और दिसंबर में होगा। आप सभी ये सब आप लोग जानते हो, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन उसमें से 1-2 जन हो गए जो थोड़ा कुछ जो नए हो गए अभी, जिन्होंने 9वीं और 10वीं कक्षा में अभी मतलब पढ़ाना शुरू किया हो, इस वर्ष शुरू किया हो, उनके लिए और भी अच्छी तरह जानकारी के लिए हम लोग बता रहे हैं। पहले जो सत्र में है, फर्स्ट टर्म नवंबर और दिसंबर में उसका एग्जामिनेशन होगा,
और वो एग्जामिनेशन बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, दैट मीन्स MCQs में होगा। और इसका जो काल है, कालांश है, मतलब समय जिसका जो ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स का होगा। कितने मिनट्स का होगा? 90 मिनट्स का होगा। तो पहला सत्र नवंबर और दिसंबर में परीक्षा होगी, MCQ के रूप में होगी, और उसकी जो समय है, उसका जो समय है 90 मिनट का होगा। दूसरा सत्र, तो मैंने कहा आपसे कि 2 सत्रों में बांट गया, और दोनों भी बोर्ड एग्जामिनेशन ही है, दोनों ही बोर्ड परीक्षा ही है। दूसरा जो सत्र है मार्च में होगा, मार्च अप्रैल के इसमें होगा, और इसका जो समय है, मतलब परीक्षा का जो समय दिया जाएगा वो 2 घंटे होंगे, 2 hours, 2 घंटे होंगे। और ये एग्जाम के रूप में डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, मतलब अगर हमारे साथ हमारा जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, हमारा जो अवस्था है उसके हिसाब से 2 घंटे के हो गए अभी बता रहे हैं। और अगर हमारे अवस्था हमारे हित में नहीं हुई तो ये शायद ये भी MCQ के रूप में 90 मिनट्स का होगा। तो दोनों में ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो आप लोग इसके बारे में समझ चुके होगे, राइट टीचर्स? हेलो, ओके मैम। हाँ जी हाँ, या मैम। ठीक है। तो इतना तो मतलब जो नोटिफिकेशन 5 जुलाई को आया था उसके हिसाब से हमारा जो ये पाठ्यक्रम है 2 भागों में बांटा गया है, और दोनों भागों में 2 सत्रों में बांटा गया है, और दोनों सत्रों में 50-50 पोर्शंस, लगभग 50-50% बाइफर्केटेड किया गया है हमारा जो पोर्शन है। और सिलेबस में जो इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स भी है, एक टर्म और दूसरे टर्म में, मतलब ये नहीं है हमारे जो हिंदी में है, जो कह सकते हैं कि व्याकरण फर्स्ट टर्म में है, दूसरे टर्म में नहीं है। फर्स्ट टर्म में व्याकरण है लेकिन दूसरे सत्र में व्याकरण नहीं, वो हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि जो पिछले साल है 30% पोर्शंस कम किया गया था, हमारा जो सिलेबस था कम कर दिया गया था, फिर किंतु मतलब अभी वापस से उसे रैशनलाइज किया गया है, युक्ति संगत किया गया है, और युक्ति संगत करके इस पोर्शंस को 2 इसमें बांटा गया है। हम आगे देखते हैं कैसे है। तो अगर आपको ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी ये देखिए, ये इसे ध्यान से देखना। नोटिफिकेशन है 5 जुलाई की नोटिफिकेशन है, वो 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए है, और ये जो 2021-22 के लिए ही है। टीचर्स एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए कि ये जो सत्र, मतलब स्पेशल असेसमेंट बनाया गया है, नई पाठ्य पद्धति बनाई गई है, ये सिर्फ इस वर्ष के लिए मैंने बताया था। और इसमें क्या आने वाले हैं? यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट। तो हमें प्रैक्टिकल्स तो साइंस और मैथ्स उनके लिए होगा, लेकिन हमारे इसमें यूनिट टेस्ट, दैट मीन्स पीरियोडिक टेस्ट, प्रोजेक्ट्स, मतलब टर्म टेस्ट और इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन आएंगे। और 9th और 10th के लिए 3 पीरियोडिक टेस्ट, CBSE ने 9वीं और 10वीं के लिए 3 पीरियोडिक टेस्ट का घोषित किया है। मतलब हम 3 पीरियोडिक टेस्ट लेना ही है हमें इस वर्ष। वो हमारे ऊपर है कि अगर हम चाहे तो पहले सत्र में 2 पीरियोडिक टेस्ट ले सकते हैं, और दूसरे सत्र टेस्ट, या तो हम इसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जैसे कि पहले सत्र में 1 पीरियोडिक टेस्ट लिया और दूसरे सत्र में 2 पीरियोडिक टेस्ट ले लिया, वो हमारे ऊपर है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ टर्म 1 और टर्म 2 का एक और रूप। टर्म 1 जो सत्र 1 है, उसकी जो परीक्षा कभी होगी, नवंबर और दिसंबर में होगी। उसके क्वेश्चंस किस प्रकार आएंगे? MCQs में आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। ओके, तो देखा गया है तो नॉर्मल, केस बेस्ड और असर्शन, और ये जो साइंस में ही होता है असर्शन और रीजनिंग। लेकिन हमारे जो हिंदी में देखा गया है कि हमें केस बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछते, लेकिन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। और उसका जो ड्यूरेशन है, पहले सत्र के परीक्षा का जो ड्यूरेशन है, समय है 90 मिनट का समय है। और उसमें जो सिलेबस है, सिर्फ पहले सत्र में जो सिलेबस दिया गया है वही आएगा।
पहले सत्र, तो मैंने आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि इस सत्र 2 सत्रों में बांटा गया है और पोर्शंस को भी 2 सत्रों में बांटे गए हैं। तो पहले टर्म का जो पोर्शन है वही पहले टर्म में आएगा, और एग्जाम, उसकी जो परीक्षा है स्कूल या सेंटर में हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। और आंसर जो है, मतलब उसका जो आंसर हमें कैसे देना है, अभी आप लोगों को, बहुत से लोगों को शंका है कि OMR शीट होगा या नहीं होगा। हाँ जरूर, ये क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, OMR शीट में ही दिया जाएगा। और OMR शीट और आगे परीक्षा हेतु बहुत से चीज़ें सर्कुलर्स और निकलनी बाकी है, पूरा अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन हमें बच्चों को OMR शीट में ही इसका जो प्रैक्टिस है वो देना होगा। और इसका रिजल्ट OMR शीट ये CBSE हमें भेज के देगी। OMR शीट का रिजल्ट जो है वो हमें उसी वक्त स्कैन करके भेज कर देना होगा, या तो हमारे पास वे मार्किंग स्कीम भी भेज कर देंगे। जो क्वेश्चन पेपर है, जो प्रश्न पत्र है, उसका मार्किंग स्कीम भी भेजा जाएगा हमें, अगर उनके डिमांड के ऊपर है कि उसी वक्त हमें ये स्कैन करके भेजना है या करेक्शन करके भेजना है, करेक्ट करके भेजना है। अगर वो कहेंगे कि करेक्ट करके भेजो तो उसी दिन हमें करेक्ट करके वो मार्क्स उनको भेज कर देना होगा। और ये मार्क फाइनल रिजल्ट में, फाइनल जो हमारी परीक्षा के जो फल आते हैं उसमें इंक्लूड किए जाएंगे, मिला दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से पहले सत्र का आपको क्लियर होगा। आप लोग एक काम कीजिएगा, एक बुक वगैरह अपने पास रखें ताकि जल्दी जल्दी थोड़ा पॉइंट्स आप लोग लिख सके। वैसे ही दूसरे सत्र का जो परीक्षा कब होगी, मार्च या अप्रैल में होगी, और वो डिस्क्रिप्टिव टाइप बता रहे हैं। अभी ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होता है, हमारा प्रश्न आएंगे, बच्चों को उत्तर लिखना है, वैसे होगा। और वो भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मतलब सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं वो, लेकिन पाठ्य पुस्तक के अंदर से ही आएंगे। और जो दूसरा है उसका जो समय काल है वो 2 घंटे का होगा, और इसके जो पोर्शन है, इसका जो सिलेबस है, सिर्फ दूसरे टर्म का, दूसरे सत्र का सिलेबस ही होगा। अभी ये परीक्षा कहाँ लिखी जाएगी? ये परीक्षा अगर हमारी जो स्थिति है नॉर्मल है तो सेंटर या स्कूल सेंटर में लिखे जाएगी, और ये नॉर्मल शीट में लिखे जाएगी, क्योंकि पहले सत्र का हम बता रहे हैं OMR शीट में है, लेकिन दूसरे सत्र का नॉर्मल शीट में लिखा जाएगा, दिया जाएगा। और इसका जो मार्क है ये भी फाइनल रिजल्ट जो हमारा आने वाला है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। वो भी किस प्रकार, अगर सिचुएशन हमारे हित में है तो। और CBSE ने एक और बात है कि सिचुएशन अभी पता नहीं, कल अच्छा रहता है तो आज बुरा हो जाता है, फिर दूसरे दिन ठीक रहता है तो तीसरे दिन बुरा हो जा रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं कोरोना की वजह से, तो हमें पता नहीं कैसे है। तो CBSE ने उसे पहले से ही ध्यान में रखते हुए प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4 करके बनाया हुआ है। जैसे कि कहेंगे सिचुएशन 1 ऐसा है कि हमारे स्कूल में ही एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि विन विन कंडीशन हो, अगर विन विन सिचुएशन हो कि सेंटर में या स्कूल में ही हमारे परीक्षा हो रहे हैं, तो क्या होगा, मतलब दोनों टर्म 1 और टर्म 2 हमें अगर दोनों स्कूल या सेंटर में ही परीक्षा हम बच्चों से लिखवा रहे हैं, क्या करेंगे, विभाजित किए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे दोनों टर्म को। किस सिचुएशन में, अगर सिचुएशन हमारे हित में है तो, जैसे कि पहले घर में स्कूल में लिखवा रहे या सेंटर में लिख रहे हैं बच्चे, और दूसरे टर्म का परीक्षा भी अगर वो सेंटर या स्कूल में लिख रहे हैं, मतलब घर के बाहर, नॉट ऑनलाइन, ऑफलाइन में अगर लिख रहे हैं, तो क्या है, सिचुएशन विन विन कंडीशन हो जाती है, सिचुएशन हो जाती है। तो इसका मार्क जो है टर्म 1 का भी और टर्म 2 का भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो हम बता सकते हैं, देखो हमारा जो 100 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे कि 80 मार्क का क्वेश्चन पेपर होता है 2 सत्रों का, और 20 मार्क हमारा क्या रहता है, आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट। तो अगर सिचुएशन ठीक रही, मतलब दोनों सत्र के परीक्षा हम बच्चों से स्कूल में और सेंटर में लिखवा रहे हैं, तो बच्चों को ये दोनों टर्मों के मार्क हम बराबर विभाजित करेंगे, और जो आंतरिक मूल्यांकन है वो तो रहेगा ही, दोनों टर्म का 10-10 करके 20 मार्क रहता है, वो तो रहेगा ही।
सिचुएशन 2 यह है कि अगर सिचुएशन ठीक नहीं रही, किंतु टर्म 2 में, टर्म 1 में अगर सिचुएशन ठीक नहीं रही और टर्म 2 में बच्चे स्कूल में आके परीक्षा लिख रहे हैं। टीचर्स आप लोग समझ रहे हो ना? मुझे कोई हाँ बोलेगा तो मैं आगे बढ़। जी मैम समझ रही हूँ। ओके, अभी सिचुएशन 2 मतलब प्लान बी क्या है, अगर टर्म 1 घर पे लिख रहे हो, ऑनलाइन है, और टर्म 2 जो है वो स्कूल या सेंटर में लिख रहे हैं। मतलब पहला जो टर्म है उसमें बच्चे हमारे स्कूल में नहीं आ सके, थोड़ा प्रॉब्लम्स होने की वजह से, लेकिन टर्म 2 में अगर टर्म 2 हमारे हित में है, बच्चे स्कूल या सेंटर में आ रहे हैं, तो उसका मूल्यांकन कैसा होगा, उसका असेसमेंट कैसा होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि टर्म 1 का जो एग्जाम है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन हो सकता है, घर पर लिया जाएगा, मगर इवैल्यूएशन क्या होगा, टर्म 1 की इवैल्यूएशन का वेटेज कम हो जाएगा, घटा दी जाएगी, और जो टर्म 2 का वेटेज है जो कि स्कूल या सेंटर में लिख रहे हैं, उसका जो वेटेज है, उसका जो वेटेज क्या होगा, बढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो दूसरे सिचुएशन में पहला हम क्या कर रहे हैं, पहला जो सत्र का परीक्षा है, पहली बोर्ड फर्स्ट टर्म के जो बोर्ड एग्जाम है घर पर लिख रहे हैं बच्चे, और दूसरे टर्म के बोर्ड एग्जाम सेंटर में लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, टर्म 1 का जो वेटेज है घटा दिया जाएगा। बच्चों को टर्म 1 में जो मार्क मिला है उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा, और टर्म 2 के वेटेज में क्या हो जाएगा, मार्क बढ़ा दिया जाएगा, मतलब टर्म 2 के वेटेज से ही ज्यादा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल टर्म 1 अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन या ऑफलाइन ले रहे हैं हम, तो क्या उसे उसका जो मार्क है 30% लेंगे, और जो टर्म 2 का है 50% लेंगे, और आंतरिक मूल्यांकन तो वैसे ही रहेगा, आंतरिक मूल्यांकन तो ध्यान देंगे ही देंगे, तो टर्म 2 के वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। ओके, समझ गए ना? यस मैम। अभी सिचुएशन 3 प्लान सी। प्लान सी क्या है, टर्म 1 स्कूल में हो रहा है, लेकिन टर्म 2 हम स्कूल में नहीं ले सकते, कोविड अगर बढ़ गया तो बच्चे आ नहीं सकते और उन्हें सेंटर या स्कूल में नहीं लिख रहे टर्म 3 फर्स्ट टर्म, लेकिन वो लोग स्कूल में ही आकर एग्जाम अटेंड कर रहे हैं, उनकी जो परीक्षा है स्कूल में आकर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टर्म 2 की वेटेज को घटा दिया जाएगा। यहाँ उल्टा हो जाएगा, टर्म सेकेंड की वेटेज के जैसा नहीं, ये जो टर्म फर्स्ट सिचुएशन 2 में टर्म 2 की वेटेज को बढ़ा दी गई थी और टर्म 1 की वेटेज को घटा दी गई थी, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन 3 में क्या होगा, टर्म 1 की वेटेज को बढ़ा देंगे, लेकिन टर्म 2 की वेटेज को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों? क्योंकि टर्म 1 बच्चों ने स्कूल में लिखा है और टर्म 2 घर पर लिखा है, तो वो वेटेज को घटा और कम घटा देंगे, घर पर जो लिखा हुआ परीक्षा उसको घटा देंगे, और स्कूल में टर्म 1 लिखा हुआ परीक्षा की वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। तो सिचुएशन 3 का हिसाब ये है। अब चलते हैं प्लान 4 पे, सिचुएशन 4 पर। सिचुएशन 4 बोले तो न टर्म 1 और न टर्म 2 दोनों भी क्या है, क्या कहते हैं, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों भी घर पर दे रहे हैं। समझा आपको? जो सिचुएशन 4 है, टर्म 1 भी बच्चे स्कूल में नहीं आ सके या स्कूल में नहीं लिख पा रहे हैं, और टर्म 2 भी सेंटर में या स्कूल में नहीं लिख पा रहे हैं, वो दोनों भी परीक्षा घर पर ही दे रहे हैं। ऐसे हालत में क्या होगा, दोनों के जो ये है टर्म 1 और टर्म 2 अगर नहीं हो रहा है, तभी इंटरनल असेसमेंट का, जो इंटरनल हमारा आंतरिक मूल्यांकन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि प्रोजेक्ट ASL वगैरह ज्यादा ध्यान दिए जाएंगे, और दोनों भी ये जो दोनों परीक्षा के मार्क है उसे कंसीडर किए जाएंगे। अगर दोनों ऑनलाइन हो रहे हैं तो, घर पर बैठ के हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये जो भाग है एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कोई शंका है तो अभी ठीक है ना टीचर्स? हेलो, यस मैम। हाँ ओके। सो मैं इतना ध्यान रखना है, अगर दोनों परीक्षा घर पर हो रहे हैं तो आंतरिक मूल्यांकन पर जरूर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और ये जो टर्म 1 और टर्म 2 के दोनों भी मार्क को भी वेटेज भी बराबर ही दिए जाएंगे, अगर टर्म 1 और टर्म 2 दोनों घर पर हो रहे हैं तो।
और ये भी बताया गया है कि अगर टर्म 2 घर पर हो रहा है तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, 2 घंटे तो रहेंगे ही, परीक्षा का टाइम दिया है, और अगर टर्म 2 भी ऑनलाइन ही हो रहा है तो वो भी 90 मिनट्स का कर दिया जाएगा, ऐसे बता रहे हैं। ओके, अभी हम सिलेबस पे चलते हैं। टर्म 1 के 9वीं और 10वीं के जो ये है सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं टर्म ये 9वीं कक्षा का पहले देखते हैं। गद्य, हमें पता है कोर बी, हम कोर्स बी ले रहे हैं, तो 9वीं और 10वीं में हमें 2 पुस्तकें हैं, एक तो स्पर्श भाग 1 9वीं में है, स्पर्श भाग 2 10वीं में है, संचयन भाग 1 9वीं में और संचयन भाग 2 10वीं में है। और फिर हमारा जो व्याकरण है और अपठित बोध है, रचना लेखन आदि। तो पहले ग्रेड 9 के पोर्शंस, ग्रेड 9 में कौन से पाठ आने वाले हैं। गद्य स्पर्श भाग 1 से दुख का अधिकार, ये टर्म 1 है, सत्र 1 का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बचेंद्री पाल जी की। और पद्य स्पर्श भाग 2 में से स्पर्श भाग 1 में रायदास के पद, रहीम के 2 है। गद्य में से दुख का अधिकार और एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, पद्य स्पर्श भाग 1 में से रायदास के पद, रहीम के 2 है। संचयन में से ये बार सत्र 1 में 9वीं कक्षा में कोई भी पाठ नहीं है। संचयन पुस्तक में से कोई भी पाठ सत्र 1 में नहीं है, लेकिन सारे के सारे व्याकरण पहले सत्र में है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो ये व्याकरण है, इसी सत्र में हमें पूर्ण रूप से करवाना है बच्चों से। पूर्ण रूप से सभी व्याकरण इसी सत्र में हमें कंप्लीट करना है। और व्याकरण में क्या है, शब्द और पद, अनुस्वार अनुनासिक, उपसर्ग प्रत्यय, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। इसमें से हम लोग बहुत कुछ हमारे जो MCS ग्रुप में है हम डालते हैं, और एक एक जितना हो सकता है, नाम में सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी हर टीचर्स एक दूसरे को जो उनके पास नई नई चीजें आती है वो उसमें डालते रहती है, और हमें एक दूसरे को अपग्रेड करते रहती है। फिर देखेंगे कि अपठित बोध में से हमें 2 अपठित गद्यांश आएंगे, अनसीन पैसेजेस, 2 अपठित गद्यांश आएंगे। और रचना लेखन टर्म 1 में रचना लेखन नहीं है। तो इस बार क्या नहीं है, सत्र 1 9वीं कक्षा के सत्र 1 में संचयन के भाग में से कोई पाठ नहीं आने वाला, और उसी प्रकार राइटिंग सेशन जो है, रचना लेखन जो है, उसमें भी कोई भी चीज नहीं आने वाली है। अब चलते हैं सत्र 1 के क्लास 10th 10वीं कक्षा के बारे में देखते हैं। 10वीं कक्षा गद्य जो स्पर्श भाग 2 है, उसमें कौन से चैप्टर्स आने वाले, कौन से पाठ आने वाले हैं। बड़े भाई साहब, तंदारा वामीरो कथा, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। और पद्य भाग से जो है कबीर की साखी, मीरा के पद। संचयन से पहले सत्र में 10वीं कक्षा के लिए कोई पाठ नहीं है। और व्याकरण सारे के सारे व्याकरण है, पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, समास, मुहावरे। अपठित बोध 2 अपठित गद्यांश आएंगे, अनसीन पैसेजेस आएंगे, और रचना लेखन बिल्कुल नहीं है। तो आप समझ गए, सत्र 1 में दोनों में, क्लास 9 में और क्लास 10 में भी संचयन पुस्तक में से कोई पाठ नहीं आने वाला, और रचना लेखन भी नहीं आने वाला। किंतु हमारा जो व्याकरण है वो सारे के सारे व्याकरण आने वाले। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हमें अपने बच्चों को इसी सत्र में हर एक व्याकरण का अच्छा परिचय देना होगा, अच्छी प्रैक्टिस देनी होगी, एक एक क्वेश्चन पर अच्छा प्रैक्टिस देना होगा। अब चलते हैं टर्म 2 पर। टर्म 2 कक्षा 9वीं में गद्य से, स्पर्श भाग 2 गद्य से तुम कब जाओगे अतिथि, धर्म की आड़। और पद्य स्पर्श भाग 2 पद्य में एक फूल की चाह और खुशबू रचते हैं हाथ। उसी प्रकार संचयन पुस्तक से क्या क्या आने वाले हैं, गिल्लू, स्मृति, हामिद खां, दीप जल उठे। और व्याकरण कोई अध्याय नहीं है।
जैसे कि हमें पता है व्याकरण हमारा पहले सत्र में हो चुका है, इसलिए दूसरे सत्र में व्याकरण नहीं है। अपठित बोध नहीं है। रचना लेखन, लेकिन इसमें सारे के सारे रचना लेखन है। हमारा जो राइटिंग पार्ट है सारे के सारे इसमें है। उसमें अनुच्छेद लेखन है जो कि 6 मार्क का, 6 अंक का एक अनुच्छेद लेखन होगा और लगभग 150 शब्दों में बच्चों को लिखना है। फिर अनौपचारिक पत्र, अनऑफिशियल लेटर हो गए, जो एक प्रश्न होगा जिसके 5 अंक हो गए, जिसके 5 अंक हो गए, वो 120 शब्दों में लिखना है। फिर है संदेश लेखन। यहाँ ध्यान देना है, संदेश लेखन 2 प्रश्न हो गए और बच्चों को दोनों लिखने हैं और दोनों के मार्क 5 मार्क, 5 मार्क के हो गए, 5 अंक के हो गए। और वो जो किसी ने अपना माइक ऑन कर दिया है क्या? प्लीज ऑफ करो। टीचर, किसी ने अपना माइक ऑन किया है क्या? प्लीज अगर आप ऑफ कर दोगे तो। ओके, थैंक यू। उमा मैडम। ओके, थैंक यू। ओके, सो दूसरा जो रचना लेखन है संदेश लेखन है। हमारा जो मैसेज राइटिंग है वो 2 प्रश्न हो गए और दोनों प्रश्नों को के मार्क 5 मार्क के है। उसमें से 2.5 मार्क के 5 मार्क का होगा संदेश लेखन। 2 हो गए और 2 प्रश्नों के लिए 2.5 मार्क दिए जाएंगे, 2.5 अंक दिए जा रहे हैं और वो लगभग 40 शब्दों में लिखना है। सो बच्चों को बताना है कि उन्हें 2 संदेश लेखन लिखना है जिसका मार्क, एक का मार्क 2.5 होगा, दूसरे का मार्क भी 2.5 होगा। फिर आते हैं संवाद लेखन पे। उन्हें संवाद लेखन भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों भी 2.5 मार्क के होंगे और वो भी लगभग 40 शब्दों में लिखने हैं। फिर जाते हैं नारा लेखन पे, जो स्लोगन राइटिंग है हमारा, वो भी 2 प्रश्न हो गए और वो भी 2.5 मार्क के एक प्रश्न पूछे, मतलब दोनों प्रश्न 2.5 मार्क के हो गए, पूरे 5 अंकों के। वो भी लगभग 10 या 20 शब्दों में लिखने चाहिए। तो आपको ये ग्रेड 9 का क्लियर होगा साफ। और कोई दिक्कत है ग्रेड 9 में किसी को? तो मैं ग्रेड 10 की तरफ चलती हूँ। अभी हमारा जो 10वीं कक्षा का सत्र 2 का पाठ्यक्रम क्या है? गद्य स्पर्श भाग 2 से गद्य में क्या क्या आने वाले? झेन की देन, कारतूस। और पद्य में क्या आने वाले? स्पर्श भाग 2 से मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, कर चले हम फिदा। सो ये पद्य, गद्य में से 2 पाठ पूछे जाएंगे और पद्य में से 3 पद्य पूछे जाएंगे। और संचयन पाठ पुस्तक में से हरिहर काका, सपनों के से दिन, टोपी शुक्ला। और व्याकरण यहाँ नहीं है। क्योंकि व्याकरण हमारा पूरा पहले सत्र में चला गया है। उसी प्रकार अपठित बोध भी नहीं है क्योंकि वो पहले सत्र में हो चुका है। रचना लेखन, अनुच्छेद लेखन 6 अंकों का एक आएगा जिसे लगभग 150 शब्दों में लिखना है। औपचारिक पत्र, 9वीं कक्षा में अनौपचारिक पत्र है, अनऑफिशियल लेटर, और यहाँ ऑफिशियल लेटर पूछे जाएंगे। औपचारिक पत्र है जो एक प्रश्न 5 अंकों का होगा और बच्चों को उसे 120 शब्दों में लिखना है। फिर चलते हैं सूचना लेखन पर। सूचना जो नोटिस राइटिंग है, नोटिस राइटिंग 2 क्वेश्चन हो गए, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों प्रश्नों को 2.5 मार्क में बांटा जाएगा और वो लगभग 50 शब्दों में लिखना है। एक नोटिस 50 शब्द में, ऐसे 2 नोटिस बच्चों को लिखने हैं। फिर विज्ञापन लेखन है जो कि एडवर्टाइजमेंट राइटिंग है, वो भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 2.5 मार्क के हो गए, 2.5 अंकों के हो गए, लगभग 50 शब्द उसमें भी लिखना है उन्हें। फिर आते हैं लघु कथा लेखन जो कि 1 प्रश्न होगा और उसका अंक होगा 5, ऐसे 120 शब्दों में लिखे जाएंगे। फिर हम आगे चलते हैं। अभी ये है पीरियोडिक असेसमेंट। जैसे कि हमें पता है हमने 3 पीरियोडिक असेसमेंट 1 साल में करना है, तो 2 पहले सत्र में कर सकते हैं, 1 दूसरे सत्र में, वैसे ही 1 या तो 1 पहले सत्र में, 2 दूसरे सत्र में कर सकते हैं और इसके 5 अंक है। और वैसे ही मल्टीपल असेसमेंट जो है, बहुमूल्यांकन, वो भी 5 अंकों के है। उसे भी हम बच्चों को कैसे देना है, जैसे कि प्रश्नोत्तरी, परियोजना कार्य और क्या कहते हैं स्वयं और सहकर्मी मूल्यांकन, मतलब पीयर ग्रुप्स में करवाते हैं ना, वैसे
या सहयोगी परियोजनाएं, मतलब ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह दे सकते हैं। फिर कक्षा प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि जो अभी कक्षा प्रदर्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन वो अपना एक्टिविटीज बनाकर वीडियो वगैरह भेजकर आपको दे सकते हैं। इसे हम मल्टीपल असेसमेंट कर सकते हैं 5 मार्कों के लिए, अंकों के लिए। फिर पोर्टफोलियो आता है। पोर्टफोलियो बच्चों ने जो भी किया है उसका जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके जो कागजात है, वो सब उन्हें उठाकर रखना है, संभाल कर रखना है। और ये हमें बच्चों के जो भी असेसमेंट किए हुए हमारे पास पोर्टफोलियोज वगैरह है, ये सब 3 महीनों के लिए उठाकर रखना है, हटाकर रखना है। और ये एक रिकॉर्ड जैसा होगा, और ये 3 महीने तक का हमारे पास होना चाहिए। और इसमें हम लोग ये भी बताती हूँ मैं आपको, सब्जेक्ट एनरिचमेंट है, श्रवण तथा वाचन कौशल। अच्छा, अब इसमें देखते हैं श्रवण तथा वाचन कौशल। बाकी तो हमें सब पता है, जैसे कि सब्जेक्ट ये हमारा मल्टीपल असेसमेंट है और पीरियोडिक टेस्ट है, वो तो पता है। श्रवण तथा वाचन कौशल में हमें ASL, जो हम पहले ASL कहते थे, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, लेकिन इस बार उसे ALS कर दिया गया है, असेसमेंट इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ALS, पहले लिसनिंग आ गया है, फिर ये क्या कहते हैं, स्पीकिंग आ गया है। तो पहले हिंदी में वैसे ही है, श्रवण तथा वाचन। हिंदी में पहले से ही श्रवण तथा वाचन है, जो अभी इंग्लिश में उसे ALS कर दिया गया है। ये भी 5 श्रवण के लिए और 5 वाचन के लिए है। तो हमें बच्चों से श्रवण जैसे कि हम बच्चों को वीडियो क्लिप देख सकते हैं, और वीडियो क्लिप सुनाकर उनसे 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। और वो बच्चे हम जो वीडियो क्लिप सुना रहे हैं उस पर 5 प्रश्न अगर हम बच्चों को देते हैं, वो 5 प्रश्नों के उत्तर बच्चे लिखेंगे। और अभी ऑनलाइन है तो हम लोग गूगल फॉर्म का यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, और वैसे ही नोटबुक का उपयोग भी कर सकते हैं। और वाचन के लिए जैसे कि हम उन्हें कोई संवाद दे देते हैं, या कोई क्या कहते हैं, भाषण दे देते हैं, या कविता दे देते हैं, बच्चे वो कविता को या वही चुन सकते हैं, या हम टीचर्स उनकी क्या कह सकते हैं, मदद कर सकते हैं कि वो क्या ले। तो बच्चे अगर हमने 2 भाषण दे दिया और एक क्या कहते हैं, एक इंटरव्यू का कुछ भी दे दिया, तो बच्चे उसे पढ़कर हम उस पर हमें सुनाए। तो हमें उन्हें चॉइस देनी चाहिए कि उनको क्या चाहिए, मतलब हम 2-3 चीज पहले से करके रखें और उनको बोले कि आपको क्या इसमें से आप जो है चयन कर सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये सब थोड़ा पहले ही बच्चों को देना है, ताकि बच्चे अपना प्रैक्टिस कर सके और उसे अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण कर सके, जैसे कि प्रेजेंटेशन हो सकता है उनका। और हमें इसका मूल्यांकन इस प्रकार करना है कि बच्चों का जो उच्चारण है, बच्चों की प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है उस पर, और बच्चे उसे किस रीति से बोलते हैं, उनकी फ्लुएंसी जो है, वो सब देखकर हमें बच्चों को अंक देने हैं। टीचर्स में भी बता दो आपको, जैसे कि ये इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन 10 मार्कों में, एक सत्र में 10 मार्क और दूसरे सत्र में 10 मार्क में विभाजित किए गए। दैट मीन्स पूरे टोटल हमारे जो एकेडमिक ईयर है उसमें 20 मार्क का आंतरिक मूल्यांकन है। तो हमें ये 10 मार्क इस प्रकार देना है, पीरियोडिक टेस्ट के लिए 3, और जो हमारा मल्टीपल असेसमेंट है उसके लिए 2, और फिर हमारा जो पोर्टफोलियो है उसके लिए 2, और जो श्रवण तथा वाचन कौशल है सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए 3। ऐसे हमें 10 मार्क में विभाजित करके देना है। ऐसे तो हम लेने के वक्त 5-5 मार्क में लेंगे, लेकिन जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो पीरियोडिक टेस्ट जो है उसे 3, मतलब बेस्ट ऑफ 2 हम ले सकते हैं। पीरियोडिक अगर 2 पीरियोडिक टेस्ट एक सत्र में लिए हैं तो बेस्ट ऑफ 2 उसमें से कौन सा है वो देखकर पीरियोडिक टेस्ट के लिए हमें 3 मार्क अंक देना है, और मल्टीपल असेसमेंट जो है उसके लिए 2, और पोर्टफोलियो उसके लिए 2, और हमारा जो ये ALS है और श्रवण तथा वाचन कौशल सब्जेक्ट एनरिचमेंट जो है उसके लिए हमें 3 अंक प्रदान करने हैं। तो आपको ये सब क्लियर हो गया है? अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? हाँ मैम। यस। जैसे कि मैंने कहा अभी सब्जेक्ट एनरिचमेंट के बारे में भी, तो हमें सब्जेक्ट एनरिचमेंट में भी बच्चों को उनके
उनके जो सब्जेक्ट के ऊपर है, रोल प्ले वगैरह वो सब देकर हम लोग उनकी मतलब पहले से ही उनका हर चीज़ देख सकते हैं। ओके, गतिविधियां वगैरह देकर हम उनको असेस कर सकते हैं। तो ये भी 5 मार्क का ही है। और मैंने जैसे बताया पीरियोडिक टेस्ट 3 मार्क के लिए, मल्टीपल असेसमेंट 2 मार्क के लिए, और हमारा जो पोर्टफोलियो 2 मार्क, और ये जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट है उसके लिए 3 मार्क। अभी हम बढ़ते हैं इस पर हमारा जो निशात मैम, हाँ बोलिए मैम एक डाउट है, हाँ बोले। ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट या आर्ट इंटीग्रेशन इन दोनों में से कोई एक दे सकते हैं क्या, या दोनों देना है? क्या कौन से सब्जेक्ट? सब्जेक्ट SCA हाँ। और आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हाँ। AAP, हाँ, उसमें इसमें से दोनों देना है, एक ही देना है? नहीं, हम दोनों ने एक दे, मतलब हाँ ये कर सकते हैं ना, उसको मिलाकर भी दे सकते हैं, या एक भी दिए तो बस है हमें। नहीं, हमारे यहाँ हमारे स्कूल में ना एक इंग्लिश के सर थे, उन्होंने बताया कि उनके वेबिनार में किसी ने बताया कि दोनों में से एक ही बस है, दोनों नहीं चाहिए। तो मैं यही डाउट पूछ रही, हमारे लिए भी वैसे ही है क्या हिंदी में हर भी? लैंग्वेज के लिए ऐसे ये नहीं है, हम लोग एक ही दे सकते हैं। लेकिन बच्चे तो एक है ना, बच्चे हमारे स्कूल के है ना, हाँ, तो अलग अलग नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन क्या कहते हैं कि मतलब इंग्लिश जैसे मतलब हर लैंग्वेज के लिए एक ही नियम दिए गए, लेकिन सिर्फ इतना है कि इंग्लिश में जो पाठ्यक्रम है थोड़ा बदल दिया गया है। जैसे कि हमारा ग्रामर है इंग्लिश में सत्र 2 में भी आ रहा है, लेकिन हमारा जो हिंदी में ग्रामर है वो सत्र 1 में आ रहा है। ऐसे ही है, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए मतलब लैंग्वेज के लिए एक ही कर दिया गया है। ओके, हम तो ये डाउट, यही एक डाउट था। वो हमारे सर ने बताया SCA या आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को, इसमें से कोई एक को चुनकर लिखना है, करना है। देखो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अगर दिए तो हम इसमें सब्जेक्ट एनरिच में आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हम बोल रहे हैं। जैसे कि हमारा इस बार हिमाचल प्रदेश, इस बार की जैसे हिमाचल प्रदेश आप वही बोल रहे हैं है ना? हाँ, तो जो हमारे वो उसी तरह रहेगा, लेकिन बच्चों को एक काम कर सकते हैं हम लोग, हमारे और हिमाचल प्रदेश के बीच में को जो डिफरेंस है वो इससे करा सकते हैं। तो क्या हो जाता है, दोनों आ जाता है उसमें, सब्जेक्ट एनरिचमेंट। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में तो हमारा क्या हो जाता है, आर्ट इंटीग्रेटेड का जो प्रोजेक्ट है वो भी हो जाता है, रह जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में भी ये हमारे लिए है ही कौन सा सब्जेक्ट। लेकिन आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिला के करना है ना? आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हमारे मतलब सब्जेक्ट एनरिचमेंट साथ कर सकते हैं। हाँ। ओके। तो फिर वो करने से वो भी करना है, ये भी दोनों करना है? हाँ, प्रोजेक्ट अलग ही है, लर्निंग अलग है, प्रोजेक्ट अलग है। अच्छा, ओके थैंक यू। लर्निंग में हम लोग हमारे बच्चों को रोल प्ले है और स्किट वगैरह है, वैसे हम मिलाकर दे सकते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में। ओके, तो आगे बढ़ूं। ये हमारा जो है कोर बी, मतलब हमारा जो कक्षा 9वीं का और 10वीं का द्वितीय भाषा रूप में हिंदी। तो इतना सब पढ़ना नहीं है, मैं छोटे इसमें बता देती हूँ हमारे में मार्क कैसे विभाजित होने वाला है। जैसे कि मैंने वाचन बोलना वो सबके लिए 5 अंक सब बता दिया था। अभी लिखने की योग्यता, संदेश, वो तो सब मैंने अभी कल भी अपने इसमें ये डाल के दिया है, संदेश वगैरह का सब एक फॉर्मेट डाल के दिया था मैंने। तो अभी हम चलते हैं इस पर। कक्षा 9वीं ब परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन, मतलब इस बार हमें क्या क्या कैसे कैसे कितने मार्क के आने वाले हैं, कितने अंकों में विभाजित किया गया है बता रहे हैं। तो फर्स्ट वन, अपठित गद्यांश, जो अनसीन पैसेज है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अपठित गद्यांश, 4 अपठित गद्यांश दिए गए होंगे, उसमें से बच्चों को सिर्फ 2 लिखना है। मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो एक अपठित गद्यांश होगा, फिर उसके साथ या दूसरा अपठित गद्यांश होगा। बच्चों को वो 2 में से 1 लिखना है। उसी प्रकार दूसरा 2 और हो गए, उसमें से 1 लिखना है। तो ऐसे बच्चों को 2 अपठित गद्यांश में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब दोनों में से मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक के, और वो 10 प्रश्न 10 मार्क के हो गए। सो 2 अपठित गद्यांश 5 मार्क के, 2 अपठित गद्यांश, दैट मीन्स 10 प्रश्न, और ये सब बहुविकल्पी 10 मार्क के।
और जैसे कि बताया है कि साइंस वगैरह में है 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 0.80 ऐसे सब क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो हिंदी है, हिंदी विषय में एक प्रश्न 1 मार्क का होगा। ओके। और दूसरा व्याकरण में, पाठ्य पुस्तक में से दिए गए व्याकरण में भाषा अध्ययन के आधार पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न, मतलब ऑप्शंस दिए गए होंगे। ऐसे कितने आएंगे? शब्द और पद में 2 अंक के आएंगे, 2। अनुस्वार अनुनासिक, ऐसे एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक के, वो भी 2 हो गए, 2 अंक के हो गए। उपसर्ग 2 अंक का होगा, प्रत्यय भी 2 अंक के, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे 4 अंक के प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर शब्द विचार, श्रुति भिन्नार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द, शब्द विचार के श्रुति भिन्नार्थक शब्द में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यायवाची के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और विलोम शब्द में से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 2-2 अंक के तीनों हो गए, जिसका अंक हो जाता है 6। फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, जो वो भी 2 अंक में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका भी ऐसे 16 अंकों के व्याकरण हमसे इस बार पूछे जाएंगे। सो अंतिम पैसेज जो है पठित गद्यांश 2 प्रश्नों के 10 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 5-5 प्रश्न अलग हो गए, ऐसे 10 प्रश्न हो गए, 10 अंक के हो गए। उसी प्रकार व्याकरण से 16 प्रश्न हो गए और पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से गद्य खंड पठित गद्यांश पर 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। सो 2 पठित गद्यांश दिए जाएंगे जो के बच्चों को लिखना है, उसके उत्तर देने हैं। बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, 10 अंक का 2 होगा, मतलब 5-5 अंक के 2 हो गए, जो 10 अंक कुल हो जाते हैं। फिर काव्य खंड से पठित पद्यांश पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 4 अंक के, मतलब 2-2 अंक, एक ही प्रश्न होगा वो, सॉरी, काव्य खंड से पठित गद्यांश 5 ये पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, और उस पर 4 अंक के 4 पूछे जाएंगे, 4 अंक के, जो कि 14 अंकों के कुल मिलाकर हो जाते हैं। फिर जो है हमारा आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन मैंने पहले ही बता दिया कि सामयिक आंकलन जो है, पीरियोडिक टेस्ट जो है 3 मार्क के, फिर बहुविधि आंकलन मल्टीपल असेसमेंट जो है वो 2 अंकों के, पोर्टफोलियो 2 अंकों के, श्रवण एवं वाचन 3 अंकों के, ऐसे कुल मिला के 10। सो ऐसे कितने हो जाते हैं? 50 अंकों के प्रश्न पत्र, मतलब 10 अंक तो हम देना ही है आंतरिक मूल्यांकन, और जो बाकी है 40 प्रश्न मतलब हो गए, उसके उत्तर देंगे, तो हमें 40 + 10 50 अंकों के प्रश्न पत्र मतलब हो जाएंगे। इसमें आपको कोई ये है, डाउट है किसी को? और इसका जो पाठ्य सत्र 1 में आने वाला है, हम थोड़ी देर पहले ही बोल चुके हैं, यशपाल जी का दुख का अधिकार, बचेंद्री पाल जी के एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, और काव्य खंड में रायदास के अब कैसे छूटे राम राम, ऐसी लाल तुझबिनु, और रहीम दास के दोहे। सो इस प्रकार 9वीं कक्षा का हो गया पहले सत्र का। अभी हम चलते हैं दूसरे सत्र। दूसरे सत्र में तुम कब जाओगे अतिथि है, और धर्म की आड़ है गद्य खंड से। काव्य खंड से एक फूल की चाह और खुशबू रश्ते आत है, और जो संचयन भाग एक पुस्तक है, उसमें महादेवी वर्मा जी की गिल्लू, स्मृति श्री राम शर्मा जी की, और एस.के. पोट्टेकाट की हामिद खां, और मधुकर उपाध्याय जी की दिए जले उठे। ऐसे हमारे स्पर्श भाग 1 में से सत्र 2 में आने वाले हैं, संचयन से भी। सत्र 1 में संचयन नहीं है। अब चलते हैं 10वीं कक्षा का विभाजन देखते हैं हम। पाठों के आधार पर विषय वस्तु के ज्ञान, बोध और अभिव्यक्ति आदि पर 25-30 शब्दों वाले 3 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो सत्र, 1 मिनट, ये सत्र 2 के बारे में बता रहा है। सत्र 2 में पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में से 8 मार्क के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि अभी बच्चों से 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो कितने हो गए? 2 प्रश्नों के 2 × 2 4 प्रश्नों, मतलब 4 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और स्पर्श निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थी के उच्च चिंतन,
क्षमताओं के मतलब उनकी थिंकिंग एबिलिटी और अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 60 से 70 शब्दों वाला 2 में 1 प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 4 अंकों का होगा। 2 प्रश्न दिए जाएंगे लेकिन बच्चों को सिर्फ 1 लिखना है 4 अंकों का। और फिर संचयन भाग 1 में से निर्धारित पाठों में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, बच्चों को 2 लिखने हैं जो कि 40 या 50 शब्दों में देना जरूरी है। और वो 2 प्रश्न मतलब 3-3 मार्क के हो गए तो उसे 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 3 मार्क का 3 अंकों का 1 प्रश्न होगा, दोनों मिला के 6 अंक। तो ऐसे हमारे कुल भार हो जाते हैं 14 अंक। फिर लेखन भाग में से संकेत बिंदुओं के आधार पर क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। वो मैंने कहा आपको 6 अंक का 1 प्रश्न होगा। फिर औपचारिक अनौपचारिक प्रश्न है, इस कक्षा 9वीं के लिए अनौपचारिक प्रश्न है जो 5 अंकों का है, 1 आएगा। फिर संदेश लेखन 2 आएंगे जो कि 2.5 मार्क में विभाजित किए जाएंगे और कुल मिलाकर 5 अंकों के हो गए। फिर वैसे ही संवाद लेखन है जो कि 2 दिए जाएंगे और दोनों बच्चों को लिखना है जो कि 2.5 अंक में विभाजित किए गए हैं, वो भी 5 अंक के हैं। फिर नारा लेखन जो है वो भी 10-20 शब्दों में उन्हें लिखना है जो कि 2 दिए जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों भी उन्हें लिखना है। ये क्या हो गए, ये सभी का विकल्प सहित हो गए, मतलब चॉइस हो गए, ऑप्शंस हो गए। ये जो है हमारा संदेश लेखन जो है, औपचारिक अनौपचारिक पत्र जो है, ये सब क्या होगा, विकल्प दिए जाएंगे, ऑप्शंस दिए जाएंगे, बच्चों को उनमें से 2-2 लिखने हैं। ओके, तो कुल मिला के 26 अंक हो गए। ऐसे 40 अंक हो जाते हैं और 10 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए। और फिर हम चलते हैं कक्षा 10वीं के पाठ विभाजन में। जो अंक विभाजन है वो देखते हैं। 4 अपठित गद्यांशों में से कोई 2 गद्यांश करने होंगे जो कि 200 और 250 शब्दों के हैं, और 2 गद्यांश के अंक 5-5 मार्क के होंगे, 5-5 अंक, मतलब एक गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका अंक 5 होगा, और दूसरे गद्यांश से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका अंक 5 होगा। इस प्रकार 10 अंक के पठित गद्यांश हो गए। फिर व्याकरण हो गए, पदबंध है, पदबंध में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें बच्चों को 4 लिखने हैं और उसका विभाजित किया गया है 4 अंकों में, 1-1 अंक 1 प्रश्न के लिए। फिर रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर जो कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी कितने हैं, बच्चों को 4 लिखने होंगे और उसका अंक कितना है, 4। फिर जो समास है, समास में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से बच्चों को सिर्फ 4 लिखने हैं और उसका भी अंक 4 है। उसके बाद जो है मुहावरे है, केवल 4 प्रश्न दिए जाएंगे और वो बच्चों को सभी लिखना अनिवार्य है, मतलब उन्हें जरूरी है कि वो चारों के चारों लिखे। बाकी जो 3 है, पदबंध है और वाक्य रूपांतर है, समास है, उसमें हमें 5 में से 4 लिखना है, लेकिन मुहावरे जो है वो सिर्फ 4 प्रश्न हो गए और चारों भी हमें यहाँ पर बच्चों को लिखने के लिए कहना है। तो इस प्रकार 16 अंकों के व्याकरण दिए जाएंगे। फिर पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में जो है काव्य खंड पठित पद्यांश पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पद्यांश दिया जाएगा, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके ऑप्शंस होंगे और उसमें से बच्चों को 4 लिखना है। और वैसे ही गद्य में 2 पठित गद्यांश होंगे और 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसके अंक 10 होंगे। इस प्रकार 14 अंकों के उन्हें लिखना है। और फिर आंतरिक मूल्य, मतलब ऐसे 10, 16 और 14 40 अंकों के हो गए क्वेश्चन पेपर, और आंतरिक मूल्यांकन जो है वो 10 मार्क का, जो कि यहाँ पर मैंने आपको कहा पीरियोडिक टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो और ALS जो है वाचन श्रवण वगैरह, सब्जेक्ट एनरिचमेंट वगैरह। ओके, फिर इसमें जो पाठ्य पुस्तक है हमारे स्पर्श भाग 1 के खंड क से कबीर साखी मीरा के पद, और गद्य खंड से क्या है, प्रेमचंद बड़े भाई साहब, प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब, और लीलाधर मंडलोई का तंतारा वामीरो कथा, और नीदा फाजली के अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अब चलते हैं हिंदी ब, जो दूसरे सत्र है, द्वितीय सत्र, दूसरा जो टर्म एग्जाम है, सेकेंड टर्म के लिए है। पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में से 8 प्रश्न आने वाले हैं और उसमें से भी हमें पाठों के निर्धारित, पाठ पे जो निर्धारित प्रश्न पूछे जाएंगे 25-30 में से,
वो 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4 अंकों के होंगे। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थी की उच्च चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति को आकलन करने हेतु 60-70 शब्दों वाला 2 में से 1 प्रश्न लिखना है। 2 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से बच्चों को 1 लिखना है, वो 4 अंकों का होगा। और फिर संचयन भाग में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर 40-50 में लिखना है, और 3 में से 2 मतलब 2 लिखना है बच्चों को प्रश्न। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, बच्चों को 2 अटेंड करना है जिसका अंक 3 होगा, जो होते हैं 6 अंकों के। ऐसे कुल मिलाकर 14 अंकों का ये हमारे पाठ्य पुस्तक से है। फिर लेखन, जो हमारे राइटिंग सेशन है, वो है एक अनुच्छेद जो कि 1 प्रश्न 6 अंकों का और 6 जिसके 6 अंक है। फिर औपचारिक पत्र, औपचारिक ऑफिशियल लेटर है जो कि एक ये है लिखना है विकल्पी सहित, मतलब ऑप्शन हो गए, 2 दिए गए होंगे, उसमें से बच्चों को कोई एक चुनकर लिखना है जो कि 5 अंकों का है। उसी प्रकार सूचनाएं लिखनी है, 2 सूचनाएं लिखनी है जो कि 2.5 अंक की लिखनी है, वे भी विकल्प सहित है, मतलब ऑप्शन रहेंगे मगर बच्चों को 2 लिखना है, 2 जो कि 5 अंकों का है। फिर विषय से संबंधित 2 विज्ञापन लिखने हैं, एडवर्टाइजमेंट है, वो भी 2 लिखने हैं जो कि 2.5 अंक के 2 है, 5 मार्क के। फिर लघु कथा लेखन जो है 120 शब्दों में जो लिखना है, वो 1 प्रश्न जो कि 5 अंक का होगा, वो भी विकल्पी सहित है, विकल्प सहित है जो कि ऑप्शन रहेंगे। और इसके आंतरिक मूल्यांकन भी 10 अंकों के है, जो सत्र 2 में है, वो भी मैंने जैसे कि ऑलरेडी बता दिया गया है, पीरियोडिक टेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो और श्रवण एवं वाचन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना तो पता चल गया है। और यहाँ पर जो इस बार सम्मिलित किए गए इंक्लूड चैप्टर्स जो है वो है मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता, सुमित्रा नंदन पंत जी की पर्वत प्रदेश में पावस, कैफी आजमी जी के कर चले हम फिदा, और गद्यगण से है रविंद्र केलेकर की पतझड़ में टूटी पत्तियां, झेन की देन, हबीब तनवीर जी की कारतूस। और जो हमारे संचयन भाग 2 पाठ्य पुस्तक है उसमें से मिथिलेश्वर जी की हरिहर काका, गुरुदयाल सिंह सपनों के से 2 दिन, राही मासूम रजा की टोपी शुक्ला। सो इतना तो आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपसे, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं आपको एक हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो भी दिखाना चाहूँगी। मैं शेयर करती हूँ। इज इट विजिबल टू यू? क्या आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन पेपर? टीचर्स, हेलो मैम। यस मैम। देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर वगैरह हमने ऑलरेडी शेयर किया है हमारे MCS ग्रुप में। हम तो हमेशा रहते ही है, एक दूसरे से मिलते रहते ही है, ग्रुप में कोई ना कोई संदेश देते रहते हैं, सब लोग एक्टिव है। लेकिन एक बार जस्ट इस पर हमें ध्यान देना है कि जैसे कि कहा था कि जस्ट मिनट, जैसे कि कहा था कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, अनिश सर ने बोला था आपको। तो हमारे देखा जाए तो देखो इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है जो कि क, ख और ग। ओके, खंड क में कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों प्रश्नों के कुल 20 उप प्रश्न दिए गए हैं। मतलब 2 प्रश्न कौन से हैं? अपठित गद्यांश के जो प्रश्न हैं उसमें 5-5 मतलब लिखना है, तो मतलब ऐसे 20 प्रश्न दिए गए हैं और हमें कितना लिखना है? सिर्फ 5-5 करके 2 लिखना है, 10 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड क में 4 प्रश्न है तथा इन सभी के 21 उप प्रश्न है। इनमें से निर्देशानुसार 16 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों को। और खंड ग में जो है कुल 3 प्रश्न है तथा 14 उप प्रश्न है। उनके जो 14 उप प्रश्न है और सभी उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मतलब बाकी सब में 20 में से फर्स्ट वाले जो खंड क में है 20 में से 10 देने हैं, और खंड ख में कितने 21 में से 16 प्रश्न के उत्तर देने हैं, और खंड ग में
पूरे के पूरे 14 प्रश्नों के उत्तर देना, मतलब 3 प्रश्न है लेकिन उसके उप प्रश्न कितने हैं, 14। ऐसे कुल मिलाकर हम अगर देखा जाए तो 55 प्रश्न पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, और हमें 40 का उत्तर बच्चों से देने के लिए कहना है। हमें बताना है उन्हें बराबर प्रश्न पत्र, हमारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स उन्हें बताकर हमें अच्छे तरीके से उनको प्रैक्टिस देनी है। और देखो अपठित गद्यांश दिए गए हैं, ऐसे पहला ऐसे दिया गया है, उसके साथ उसके निम्नलिखित निर्देश अनुसार के साथ 5 प्रश्न दिए गए हैं। फिर उसके एक प्रश्न के साथ उसके 4 ये दिए गए ऑप्शंस दिए गए, ऐसे कितने प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न दिए गए हैं। फिर अथवा दिया गया है, देखो या तो मतलब बच्चों को पहला वाला लिखना है या तो इसमें से दूसरा वाला लिखना है, और बच्चों को हमें बताना है कि अगर आप कौन सा लिख रहे हैं वो प्रश्न का लिखे, क्योंकि देखो आप पहले ही यहाँ पर ऊपर ही बता रहे हैं कि जो प्रश्न बच्चे लिख रहे हैं उसका नंबर बराबर सही प्रकार से बच्चों को लिखना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर खंड का अपठित गद्यांश पहला प्रश्न, ओके, खंड का अपठित गद्यांश पहला प्रश्न, और उसके बाद जो लिख रहे हैं तो कौन सा वाला लिख रहे हैं, पहला प्रश्न का पहला या पहले प्रश्न का दूसरा, ऐसे बच्चों को लिखने के लिए हमें प्रैक्टिस देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चों को पता नहीं चलेगा। फिर वैसे ही अथवा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पैसेज दिया गया है, वो पैसेज के लिए भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित में से निर्देश अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। 4 प्रश्न दिए हैं और 5 के लिए 4-4 ऑप्शन दिया गया है, बहुविकल्प मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद वापस से दूसरा प्रश्न 2, तो हमें बच्चों को बताना है प्रश्न 1 का पहला, या तो बच्चे फर्स्ट प्रश्न 1 के पहला पैसेज लिख रहे हैं तो पहला लिखने के लिए कहना चाहिए, प्रश्न 1 इन ब्रैकेट लिखने के लिए कहना, और प्रश्न 1 अगर दूसरा वाला लिख रहे हैं तो 2 इन ब्रैकेट लिखने के लिए कहना चाहिए, मतलब उन्हें बराबर से निर्देश देना चाहिए ताकि गलती ना हो। फिर जो है नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, उसमें भी ऐसे ही दिया गया है, 2 दिए गए, उनमें से कोई एक लिखना है जो 5-5 अंकों का है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा गद्यांश के बारे में। फिर देखो अथवा दिया है, उसके बाद हम चलते हैं, इसके जो क्वेश्चंस खत्म होते हैं, उसके बाद खंड व्यावहारिक व्याकरण। देखो व्याकरण में वो लोग कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो व्याकरण हमें सबको डाउट रहता है कि व्याकरण से हम कैसे प्रश्न पूछे, व्याकरण से हम कैसे प्रश्न पूछे, तो व्याकरण से देखो कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हालांकि सब पाठ्य पुस्तक से ही है, हर प्रश्न उन्होंने पाठ्य पुस्तक से ही दिया है। जैसे कि ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, कतारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, इस वाक्य में से संज्ञा पद छाटिए। संज्ञा पद कौन सी है हमें पता है, ततारा की तलवार, संज्ञा क्या है, ततारा की तलवार। ओके, सो वैसे ही कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहा है, अंडरलाइन वर्ड्स, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए, ये कौन सा है, इधर उधर कौन सा है, इधर उधर क्या है, जो कि क्रिया फड़फड़ाने की विशेषता बता रहा है, इधर उधर क्रिया विशेष। तो वैसे आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन पेपर आप सभी के पास है, आई थिंक आप सबके पास होगा ये क्वेश्चन पेपर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि हमने बहुत पहले ही इसका इसे भेज कर दिया था, और जिसके पास नहीं है तो हम वापस से देंगे ताकि आपको एक बार फिर इसका ज्ञात हो जाए। फिर हम देखते हैं, देखिए पदबंध के क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। नेक और मददगार क्या है, ततारा की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण पदबंध, राइट, तो हम समझ सकते हैं। ओके, वैसे ही निम्नलिखित भागों में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर वाले विकल्प चुनिए, मतलब 5 दिए गए होंगे, उसमें से बच्चों को 4 करने हैं। अभी ये कौन सा है, रचना की दृष्टि से वाक्य, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, वो दिया गया है। तो देखो इसका एक क्वेश्चन का पैटर्न कितनी अच्छी तरह और बहुत ही सही रीति से दिया गया है, मतलब बच्चों को हम आराम से अगर हम प्रैक्टिस दे तो बच्चे इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम बहुत ये हो रहा है, इसलिए मैं चलेगा ना, आप लोगों को और प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब मैं अगर इससे आगे जा रही हूँ तो आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, राइट।
अभी देखिए निम्नलिखित 6 भागों में किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर लिखे। अभी 6 प्रश्न दिए हैं, उसमें से उन्हें कितने देना है? 4 के उत्तर देने हैं। अभी ये क्या है? समास। समास के बारे में प्रश्न बताया गया है। गुरु दक्षिणा शब्द से के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। ओके, गुरु दक्षिणा क्या है? गुरु के लिए जो दक्षिणा दी जाती है, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये तत्पुरुष समास है ना। तो ऐसे समास का भी बहुत ही अच्छी तरह से मतलब हमें समझ में आया कि हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों के लिए, कैसे उन्हें प्रैक्टिस दे सकते हैं। उसलिए उसके वो बताने के लिए हमको ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और किसी ने मुझसे कहा था कि 9वीं कक्षा का भी प्रश्न पत्र अगर मिला तो ठीक है, तो लेकिन 9वीं कक्षा का प्रश्न पत्र अभी तक आया नहीं है, लेकिन हम लोग इसी प्रकार इसी मॉडल के थ्रू बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली इतना है, हमें बहुत लिखना होगा, बहुत टाइप करना होगा, लेकिन हम बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो आप लोगों को समास कैसे पूछा गया वो भी समझ लो। देखो, आशा को लांग कर गया हुआ का समासपद क्या है? आशातीत। ऐसे मतलब बच्चों को अगर प्रैक्टिस दिए तो बच्चे एकदम आराम से एकदम फटाफट कर सकते हैं। जैसे सज्जन का समासपद का विग्रह होता है, सत है जो सज्जन, है ना। तो वैसे अगर बाकायदा यहाँ पर 6 दिया गया है, बच्चों को सिर्फ 4 लिखना है। ओके, फिर निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। जैसे कि अभी ये है क्या बता रहा है हमें इसके बारे में, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या है? ओके, क्या होता है? अंधे के भाग्यवशी अच्छी वस्तु प्राप्त होना। मतलब बच्चों के लिए ये दिया गया है, विकल्प दिया गया है, जिससे बच्चे आराम से सुन सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? बच्चों को प्रैक्टिस देना जरूरी है। हमें इतना प्रैक्टिस देना होगा बच्चों को कि बच्चे आंख बंद करके इसका उत्तर ढूंढ ले, ऐसे हमें प्रैक्टिस देनी होगी उनको। तो अभी ग्रामर का पता चल गया ना आपको। देखो, विद्यालय के वार्षिक उत्सव में इतने अधिक काम थे कि उन्हें निपटाते निपटाते डैश उपर्युक्त मुहावरे से रिक्त स्थान भरी। क्या हो गया? इतना काम था कि क्या आ गया? पसीना आ गया। हमें पता है ना, बहुत काम करते तो पसीना आ गया, लेकिन उसे अगर मुहावरे में करना है तो दांतों पसीना आ गया। तो आप लोगों को इसके बारे में समझ आ गई होगी। ओके, फिर है गद्यांश। ओके, गद्यांश दिया गया होगा, उसके विकल्प छांट कर लिखना है। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर दिया है, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न बता रही हूँ। ओके, जो कि हमने ऑलरेडी MCS ग्रुप में डाल दिया है, और बहुत पहले से डाल दिया है, ताकि सब लोग इससे जान जाए। फिर अगर आप लोग चाहे तो एक बार और डाल दिया जाएगा आप लोगों के ग्रुप में, ताकि आप लोग इससे और एक अच्छी बार पढ़ें। और इसमें ये देखा जाता है कि ये जो प्रश्न पत्र में है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही प्रश्न पूछे गए। अभी जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसमें पाठ्य पुस्तक के अंदर से ही प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे नहीं है कि बाहर से प्रश्न पूछा गया है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, बच्चे एकदम घबरा जाए। अभी तक तो ऐसे मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही दिया गया है, लेकिन हमें क्या देना है? बच्चों को प्रैक्टिस देनी है। मैं अभी आपको इसका एक मार्किंग स्कीम का वो भी बता देती हूँ, ताकि आप लोग समझ जाए कि मार्किंग कैसे करना है, बच्चों को मार्किंग स्कीम कैसे देना है। देखो, ये जो है मार्किंग प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, जो उसका है मार्किंग स्कीम है। हमने जो अभी प्रश्न पत्र देखा, उसका जो है मार्किंग स्कीम है ये। देखो, जो फर्स्ट प्रश्न दिया गया था गद्यांश पे, उसका जो 5 प्रश्न पूछा गया था, उसके 5 उत्तर भी दिए गए हैं। तो हम आराम से, क्योंकि मैंने पहले से कहा कि MCQ फर्स्ट MCQ है, और MCQ में जो है OMR शीट में होने वाले हैं। और OMR शीट मतलब अगर ये हमें ये देने वाले हैं, कौन CBSE स्कूल को मार्किंग स्कीम देगी, और अगर जरूरत पड़ा तो शायद हमें यहीं से करेक्शन करके देना होगा बच्चों के आंसर्स देख के, यहीं से उन्हें मार्क भेज के देना होगा, या तो क्या कहते हैं OMR शीट को स्कैन करके देना होगा। तो इसलिए हम दोनों प्रकार में तैयार होना चाहिए। शायद हमें करेक्ट करके भेजना पड़ेगा मार्क, या तो हमें स्कैन करके। तो अभी तक बताया नहीं है कैसे, सिर्फ रखा है ऐसे, दोनों में भी कोई एक हो सकता है करके हमें CBSE ने निर्देश दिया है। ओके,
तो ये है, एक बार इसे जस्ट देख लो। प्रश्न 2 उसके भी ऐसे है, पद्यांश जो है उसके उत्तर दिए गए हैं, और फिर व्यावहारिक व्याकरणों के भी 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए, जो कि हमें किन्हीं 4 के उत्तर देना था। देखो, और 4 प्रश्न मतलब सभी के उत्तर हमें इस मार्किंग स्कीम में दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। शेयरिंग स्टॉप। तो मेरे ख्याल से जो 9वीं और 10वीं कक्षा को हमें एकदम जो ज़रूरी चीज़ें थी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और इसके ये जो PDF है और ये जो प्रेजेंटेशन है जो भी है आप लोगों को शेयर भी किया जाएगा, ताकि आप लोगों को मतलब आगे एक बार और आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग तो आई वुड लाइक टू से टू अनीश सर दैट यू सेड नो, you should, this is synergy and you should take the advantage of this. We teachers are already taking the advantage through that MCS group, because our group is since 4 years. We are doing everything in, not only me but all the teachers are together, and whatever information they get they put in that, isn't it teachers? So आपको और कोई, आई थिंक मैं हर इसमें पहुंच चुकी हूँ, जो और कोई डाउट वगैरह है हमें। सर, नौफल सर, नौफल सर, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल टीचर्स? आप सुन रहे हो ना मुझे? हाँ मैम। तो हाँ मैम। और कोई डाउट है आप लोगों को मैडम? अगर किसी को कोई डाउट्स है तो टीचर्स, और कोई डाउट है आप लोगों को? विनोद सर, मैंने हमसे जो हो सकता है MCQs है, बहुत सारे चीज हम लोग उसमें डालते रहते हैं। आई थिंक आप लोग सब लोग है वो MCS ग्रुप में, सभी लोग है ना अभी? हाँ, हम लोग जो हमें मिलता है, जैसे कि अभी कल ही मैंने नोटिस वगैरह का जो फॉर्मेट वगैरह डाल दिया था। सर, नौफल सर, आर यू देयर? अनीश सर? Hello. हाँ सर। Whether the meeting is over? Yes. Now Okay. I'm asking whether they have any doubt, but no one is asking any doubt, because I think everything is cleared in that MCS group, no, Sahodya's group. We are active all the time. So Yes. whatever information we are getting, we are putting in that. Even question papers, everything is there in that group. So that is why I don't think more doubts will be there. But still, if anyone has doubt, किसी को अगर कोई शंका है तो बोलिए। So, if there are हाँ बोलिए रमनी जी। हेलो। हाँ बोलिए मैम। हेलो। हाँ बोलिए मैम। पिछले हफ्ते में एक क्वेश्चन पेपर, एक प्रश्न पत्र डाला MCS ग्रुप, उसमें अपठित काव्यांश भी है। हाँ 118 अपठित काव्यांश विकल्प, अपठित भाग में अपठित काव्यांश भी है। अपठित काव्यांश, यस। हाँ वो तो क्या है,
क्वेश्चन पेपर हम बोल नहीं सकते, कभी क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक आ जाता है, लेकिन मैंने तो अपठित काव्यांश मेरे ख्याल से वो पुराना प्रश्न पत्र होगा। हाँ, वो पुराना प्रश्न पत्र है। और जो 2 काव्यांश है हमारे पठित काव्यांश से ही है, एक मीराबाई के इसमें से है और एक दूसरा बाहर से नहीं है। वो जो है वो पिछले साल का प्रश्न पत्र आ गया होगा। जी हाँ जी। तो आप वो टेंशन मत लीजिए, हम अभी जो नया वाला है वो आपको डाल के देंगे। ओके ओके। और क्योंकि अभी के जो प्रश्न पत्र में है वो अपठित इसमें से नहीं है, पठित इसमें से ही है, पद्यांश में से ही है। और कोई शंका है आप लोगों की? See, if there are much doubts, we will close this meeting. You know, Sahodaya means raising together, sharing and caring for the mutual development. That is the concept of Sahodaya. That's what CBSE is proposing through Sahodaya. So each and everyone can support each other. Ms. Nishat was doing it for all of us, and we all were contributing to this to get updated. And now we all are connected online. No issue at all. At any time you can raise your issues and you can discuss, and we can find solutions for all the queries. So let's wind up this session. I couldn't see others here, like Sahodaya officials, all are missing, maybe due to hectic schedules. So I thank the resource person, Ms. Nishat, for this wonderful session, and I congratulate and I appreciate the participation from everyone, the teachers. Thank you for joining this session with the Malappuram Central Sahodaya. Thank you all. Thank you, sir. Thank you everyone for being here with me. Thank you, sir, and thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, मुझे ma'am. सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, विल बी थैंक यू मैम। थैंक यू निशाद मैम। और भी मुझे बहुत लोग कॉल करते हैं, जब चाहिए आप लोग कॉल कर सकते हैं और फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अगर हो सका जितना हम लोग भी, क्योंकि हम भी नहीं है इसमें, मैं भी नहीं हूँ इसमें, अगर हो सका जितना मिलता है हम लोग डालते हैं और हम भी फाइंड आउट करते ही रहते, पूछते रहते नई नई चीज़ें, कि हर दिन सर्कुलर्स बदलते रह रहे हैं CBSE, तो सब लोग मतलब नए हैं इसमें। जो हमें मिलेगा हम भी डालेंगे, आपको मिलेगा आप लोग भी दो। ऐसा है कि 10th स्टैंडर्ड का हमें फिर भी मिल जाता है। हाँ, लेकिन 10th स्टैंडर्ड का मिल जाता है, लेकिन छोटी जो क्लासें हैं, जो 9th 8th 7th, उसका कुछ नहीं मिलता। ठीक है, हमें जो देखेंगे, क्योंकि मैंने 9 का बहुत सर्च किया, नहीं मिला, लेकिन हम बना सकते हैं। हाँ, हमें खुद बनाना होगा, और जो हम बनाए वो से हम शेयर कर सकते हैं। और मैं एक बात ये भी बोलूँ कि हमारा स्कूल क्या कर रहा है, 50-50% करने की कोशिश कर रहा है। जो पहला क्या स्कूल के ऊपर है, जब चाहिए हम वैसे बना सकते हैं 9वीं के लिए, तो हम लोग 50% ये बना रहे हैं, MCQ बनाएंगे और 50% डिस्क्रिप्टिव, ताकि बच्चे लोग का लिखने का जो ये है जाए। तो हम लोग लिखने की हैबिट बिल्कुल अच्छा ही रहेगा। जो पीरियडिक टेस्ट है वो हम डिस्क्रिप्टिव करें, करना अच्छा है, हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। चलो, और सब बाय, वी मे लीव। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय। Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Bye. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। My pleasure. Okay, so you may leave. Thank you. Bye. Okay.